स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे डिजीजेज काउज्ड बाय हेलमिंथिस। देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ हेलमिंथिस। वन इज कॉल्ड अस्केलहेलमिंथिस और निमैथिलमेंथिस एंड अदर इज प्लेटीहेलमिंथिस। निमैथिलहेलमिंथिस is called roundworm and platyhelminthes is commonly called tapeworm, flatworm. Okay, so first we know these caused by roundworm, and that is Escherichiasis. First disease Escherichiasis. Escherichiasis disease is caused by roundworm. Name Escherichia lumbricoides. Escherichia lumbricoides. Okay, this it is caused by Escherichia lumbricoides, and Escherichiasis more common in children because Escherichiasis is transmitted by contaminated food, water, etc. Different types of usable materials, and it also transmitted by soil. और चाइल्ड का ऐसा नेचर होता है कि वह कुछ भी उसे मिलता है तो उसे मुंह में डालता है। ऐसे कंडीशन में चाइल्ड में इसके इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है। कंटामिनेटेड बाय फूड, वाटर एंड अदर। जनरली राउंड वॉर्म और एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स बॉडी की अगर बात करें, एस्केरिस इज मोनोजेनेटिक पैरासाइट completes life cycle in only one host, and that host is human body. Completes life cycle in only one host, and that host is human. Escherichia lumbricoides का बॉडी थिन, लॉन्ग, सिलेंड्रिकल होता है दिस लाइक, एंड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आल्सो प्रेजेंट इन एस्केरिस lumbricoids. This like this is female and male. It means Escherichia shows sexual dimorphism. Male and females are differentiated to each other. Female is straight and long, while male short and curved and having penile city. Female is straight and long, okay, while male is curved at posterior part, and having penile city. Penile city is for copulation. Okay, next, it is a monogenetic parasite, completes life cycle in single host body, and that host is human. In human,
फीमेल worms मीन्स फीमेल एस्कैरिस ले एग्स पर डे और मिलियंस एग्स, एक दिन में मिलियंस एग्स देती है, ठीक है ना। मिलियंस एग्स लेस पर डे इन ह्यूमन बॉडी। फीमेल worms lay eggs in human body। ह्यूमन बॉडी में एग्स ले करता है एंड कितना, अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन एग्स per day। Okay, and these eggs are releases out through excreta। But fertilized egg present inside the human body develops into embryonic stage। Fertilized egg, also called embryonic stage, enters in mucosa layer of intestine। Enters in mucosa layer of intestine and also passes in different body parts with the help of blood circulatory system or portal system। Enters in mucosa layer of intestine and distributed in different parts through portal system and systemic circulatory system। Generally, portal system a bypass of blood circulatory system, hepatic portal system, renal portal system, ठीक है ना। तो इंटेस्टाइन से जो ब्लड एब्जॉर्ब हो रहा है, ब्लड जो मूव कर रहा है, उसके थ्रू यह दूसरे बॉडी पार्ट्स में रीच कर जाता है। यह लंग्स में जा सकता है, फेरिंग्स में जा सकता है और वहां जाकर के फिर जो एम्ब्रियोनेट स्टेज है डेवलप्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। रीच इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड इन बॉडी पार्ट्स it develops into adult। In mucosa layer also develops into adult and again come back in intestines। Okay, now symptoms and diagnosis। Diagnosis by a stool test। Presence of Ascaris in a stool is the diagnosis of ascariasis disease। Symptoms: nausea, weakness, cough, anemia। nausea, weakness, cough, anemia, intestinal pain, diarrhea, etc। And if
ascariasis reach in brain and liver, it also damages the brain and liver. Also damages the brain and liver etc. ओके, नेक्स्ट ट्रीटमेंट की बात करें हम. ट्रीटमेंट, different types of medicines are used such as heterogen medicine, chenopodium oil, etc. ठीक है. और अगर हम कंट्रोल की बात करें, कंट्रोल ऑफ एस्केरियासिस इज डन बाय प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा. एक्सक्रीटा का सही ढंग से डिस्पोजल करना ही इसका. होता क्या है कि जब ह्यूमन एक्सक्रीटा के साथ एग्स निकलता है तो वह एग्स सॉइल के द्वारा, वाटर के द्वारा, वेजिटेबल्स के द्वारा, यानी हमारे बॉडी में किसी न किसी फॉर्म में एंटर करता है, हमारे यूजेबल मटेरियल्स को, हमारे फूड वाटर को कंटामिनेट करता है. तो अगर प्रॉपर वे में डिस्पोजल होगा तो हमारे बॉडी में एंटर नहीं करेगा और इसके इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं. ओके, नेक्स्ट डिजीज फाइलेरिया और फाइलेरिएसिस, also called एलिफेंटिएसिस. फाइलेरिएसिस और एलिफेंटिएसिस होता क्या है कि इस जो भी पर्सन इस डिजीज से सफर्ड होते हैं उनका लेग्स स्वेल कर जाता है और स्वेल करके हाथी के पैर के जैसा हो जाता है. So it is also called elephantiasis, caused by filarial worm, Wuchereria bancrofti और Wuchereria malai. Okay, Wuchereria bancrofti and Wuchereria malai are the pathogens of filaria or filariasis or elephantiasis. It is Wuchereria, it is digenetic parasite. Completes life cycle in two hosts. Primary host is human and secondary host also called intermediate host, that is female Culex mosquito. Okay, primary host human, secondary host Culex mosquito, and it causes filariasis. Filariasis or filaria may be subcutaneous. ठीक है, lymphatic, filarial worms causes filaria that may be lymphatic or subcutaneous. It means filarial worm lives in lymphatic system or under the skin. So maybe subcutaneous filaria or lymphatic filaria. Generally in human body the adult worms lay eggs and that is called microfilary. In human worm lives in lymphatic system. After mating
फीमेल lays eggs called माइक्रोफाइलेरी। ठीक है, एग्स का नाम क्या देंगे हम? माइक्रोफाइलेरी। एंड माइक्रोफाइलेरी एंटर्स इन मस्क्यूटो बॉडी जनरली ड्यूरिंग नाइट टाइम। माइक्रोफाइलेरी रीच इन सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स। यह इसके केस में होता है, अगर मलेरिया का कंडीशन देखें तो मलेरिया के कंडीशन में भी होता है। ड्यूरिंग नाइट प्लाज्मोडियम और पैरासाइट पैथोजेंस रीच इन सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स। सो माइक्रोफाइलेरी आल्सो रीच इन superficial blood vessel during night। और जब मस्क्यूटो ब्लड सक करेगा तो सुपरफिशियल पार्ट से ही ब्लड सक करेगा। इट मीन्स माइक्रोफाइलेरी रीच इन मस्क्यूटोज बॉडी। माइक्रोफाइलेरी रीच इन मस्क्यूटोज बॉडी। Develops into infective stage। Microfilaria reach in mosquito body। In mosquito body it modified develops into infective stage। और जब वह मस्क्यूटो पुनः किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो काटते समय सलाइवा का सीक्रेट करेगा एंड विद द हेल्प ऑफ सलाइवा इन्फेक्टिव स्टेज रीच इन ह्यूमन बॉडी एंड कॉजेज डिजीजेस। ओके, अब देखिए इसका सिम्टम्स क्या है, होता क्या है। सिम्टम्स ऑल्सो अपीयर्स इन डिफरेंट स्टेजेज। In primitive stage, in first stage mainly increase in number of eosinophils takes place। It means that is called eosinophilia। प्रिमिटिव स्टेज में सिर्फ eosinophilia का नंबर इंक्रीज करता है, बाकी कोई सिम्टम्स अपीयरेंस नहीं होता है। तो इसके सिम्टम्स भी कई स्टेज में अपीयर होता है। फर्स्ट स्टेज eosinophilia। eosinophilia means increase in number of eosinophils। okay, and enlargement of lymph nodes। enlargement of lymph nodes, this is the first stage। प्रिमिटिव स्टेज में जैसे ही इसका इन्फेक्शन होता है तो प्रिमिटिव स्टेज में कोई दूसरा सिम्टम्स नहीं होगा। सेकेंड स्टेज इज जनरली symptomless। no any symptoms appears in second stage, but pathogen present in night blood examination। अगर रात को पेशेंट बॉडी से ब्लड लेकर टेस्ट किया जाए तो उसके बॉडी में पैथोजेंस प्रेजेंस हो सकता है। ये सेकंड स्टेज में है, बाकी इसके अलावा कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं होगा।
ठीक है। एंड थर्ड स्टेज की बात करें हम, थर्ड स्टेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम अपीयर्स इन पेशेंट बॉडी सच एज इन्फ्लामेशन इन लिम्फ नोड्स, inflammation in lymph nodes, ठीक है, enlargement of lymph vessels, inflammation in lymph vessels, a storage of lymph in legs और जेनाइटल्स। होता क्या है कि जैसे ही लिम्फ वेसल्स में इस बॉर्ब्स का नंबर बढ़ता है तो वह लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, और ब्लॉक करने का मतलब है प्रॉपर वे में लिम्फ का सर्कुलेशन नहीं होता है। रिजल्ट क्या होता है कि वो ग्रेविटी के कारण बॉडी के निचले पार्ट में जाकर के लिम्फ जमा होना शुरू कर देता है, और जब लिम्फ जमा करना शुरू करेगा तो क्या काम काउज करेगा, ओडेमा काउज करेगा, मीन्स स्वेलिंग। और यही स्वेलिंग होता है जिसके कारण इसका नाम दिया जाता है एलिफेंटिएसिस। इसी कारण इसका नाम क्या देते हैं, एलिफेंटिएसिस। एंड लास्ट स्टेज, फोर्थ स्टेज दिख रहा है, फोर्थ स्टेज इज, अगर हम फोर्थ स्टेज की बात करेंगे तब कहेंगे थिक स्किन, थिकनेस ऑफ स्किन। स्किन क्या हो जाता है, थिकनिंग हो जाता है, तो कह सकते हैं थिकनिंग ऑफ स्किन, थिकनिंग लिखते हैं, थिकनिंग ऑफ सबक्यूटेनियस स्किन, ठीक है। चलिए, अब यह भी जो थिकनिंग होगा सभी बॉडी पार्ट्स में नहीं होता है, मेनली कहाँ होगा, लेग्स में होगा, जेनाइटल्स में होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट, सम मेडिसिन्स, हेट्राजन एंड डाइइथाइल कार्बामेजाइन आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल। In some area, prophylactic means preventive medicines are also used in फाइलेरिया प्रोन एरिया। जिस एरिया में फाइलेरिया की पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है वहां बचने के लिए पहले भी फाइलेरिया से बचने का मेडिसिन दिया जाता है। ओके, सो कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट, हेट्राजन, इसके पहले भी हेट्राजन का नाम लिखा था मैं, डाइइथाइल कार्बामेजिन, दीज आर द मेडिसिन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ फाइलेरिया, ठीक है। एंड प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन इज ऑल्सो यूज्ड इन फाइलेरिया प्रोन एरिया। जहां फाइलेरिया की पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है वैसे एरिया में हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज टीनिएसिस, caused by tapeworm, flatworms, okay, generally caused by tapeworm. There are two species of tapeworm. First, Taenia solium and other Taenia saginata. Taenia solium is commonly called pork tapeworm and it is called beef tapeworm. Pork tapeworm and beef tapeworm. Okay,
जनरली इट इज डाइजेनेटिक पैरासाइट, completes life cycle in two hosts. Primary host is human for both. It means for Taenia solium and Taenia saginata. While secondary host may be pig or cow. Pig for solium, cow for saginata. Okay, secondary host of Taenia saginata is cow and secondary host of Taenia solium is pig and primary host for both is human. Okay, generally in human body adult Taenia solium is present or Taenia saginata is present. Formation of gametes, fusion of gametes occurs in human body. ठीक है, दोनों एडल्ट का जो लाइफ साइकिल का सेक्सुअल फेज है वो ह्यूमन में होता है, इसलिए इसको हम प्राइमरी भी कहते हैं. सो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स occurs in ह्यूमन बॉडी. और ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट में, तो आप याद रखेंगे इन इंटेस्टाइन. इन इंटेस्टाइन फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस. ठीक है, एंड फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनटू एम्ब्रायो स्टेज. फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट डेवलप्स into embryo and covered by cell. एम्ब्रायो में कवर्ड होता है और बाहर से एक कवरिंग के द्वारा कवर्ड हो जाता है, जिसका कि नाम हम देते हैं ऑन्कोस्फेयर. ऑन्कोस्फेयर. ठीक है, नाम क्या देंगे, oncosphere. It is the stage oncosphere transfer in animal's body. It means oncosphere is released out through excreta. ह्यूमन एक्सक्रीटा के द्वारा ऑन्कोस्फेयर बाहर निकल गया. अब अगर पिग ह्यूमन एक्सक्रीटा का यूज करेगा, खाएगा, या काऊ अगर ग्रास खाती है तो कहीं न कहीं ऑन्कोस्फेयर का इन्फेक्शन होता है और वह ग्रास के थ्रू काउज बॉडी में इंटर कर जाता है. सो इन एनिमल्स बॉडी ऑन्कोस्फेयर मोडिफाइड इनटू हेक्साकैंथ लार्वा. In animals means pig or cow, oncosphere develops into hexacanth larva because the cell present in oncosphere is dissolved by digestive juice of एनिमल्स. एनिमल्स के द्वारा जो भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है वह इस सेल को डैमेज कर देता है. एंड द बाइल सिक्रीटेड बाय एनिमल हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ हेक्साकैंथ लार्वा. बाइल के कारण वह जो भी ऑन्कोस्फेयर लार्वा है वह कन्वर्ट हो जाता है हेक्साकैंथ लार्वा में. अब यहां से हेक्साकैंथ लार्वा कहां बना, तो एनिमल इंटेस्टाइन में. एंड इट मूव्स एंड सेटल्स इन मसल्स ऑफ एनिमल्स. अब यहां से यह मूव करेगा और मूव करते करते एनिमल के मसल्स सेल्स में, मसल्स पार्ट में जाकर के सेटल हो जाता है. ठीक है, सेटल्स इन मसल्स. हेक्साकैंथ कहां पहुंच गया, मसल्स में.
and in muscles hexacanth larva again develops modified and form bladder worm or cysticercus. It means hexacanth larva forms cyst around the body and convert into bladder worm or cysticercus. In muscles it is viable up to 6 months. 6 month तक वह viable है, सर्वाइव करता है। और ऐसे कंडीशन में अगर उस एनिमल का अंडर कुक्ड फूड या कुक्ड फूड ह्यूमन के द्वारा लिया गया तो वह ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। इट मीन ट्रांसमिशन बाई अनकुक्ड और अंडर कुक्ड पोर्क और बीफ। सिम्टम्स इंडाइजेशन, ठीक है, डाइजेस्टिव डिजॉर्डर्स, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, पेन इन स्टोमक, नौसिया, वोमिटिंग, इटीसी। एंड दिस लार्वा ऑल्सो रीच इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बिकॉज जब यह इंटेस्टाइन में जाता है तो इंटेस्टाइन बाल को रप्चर करना शुरू करता है और रप्चर करने के बाद ये इंटर कर जाता है ब्लड वेसल्स में एंड विद द हेल्प ऑफ ब्लड इट रीचेज इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी सच एज आई, लंग्स, लिवर्स, इटीसी। अगर यह आई में जाएगा तो ब्लाइंडनेस काउज कर सकता है, लीवर में जाएगा सिरोसिस काउज कर सकता है, लंग्स में लंग्स, आई, ब्रेन एंड लीवर, और अगर ब्रेन में जाएगा तो एपिलेप्सी काउज करेगा। ठीक है, आई, ब्रेन एंड लीवर। वन मोर जो कि ह्यूमन का डिजीज नहीं है, वो कंपटीशन के लिए मैं 1 मिनट के लिए बताता हूं मैं, डेट इज लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक इज ऑल्सो फ्लैट वर्म, टेप वर्म, कॉजेज डिजीजेज, ठीक है, जिसका कि नाम हम देते हैं फैसियोलियोसिस। इसका नाम है फैसियोला हेपेटिक। सिर्फ कंपटीशन के मैं बता रहा हूं, कभी कभी कुछ में पूछ देता है, बोर्ड के लिए जरूरी नहीं है। लीवर रॉट और फैसियोलियोसिस काउज्ड बाई फैसियोला hepatica commonly called liver fluke. Fasciula hepatica is commonly called liver fluke. It is a digenetic parasite. Completes life cycle in 2 host body, primary sheep or goat, secondary snail. Okay, it passes through different stages such as larval stage, meracyst है, meracidium develops into a sporocyst develops into रेडिया develops into cysticercus. These are different larval stages. Meracidium infects snail, यह snail को इन्फेक्ट करता है और यह गोट और सीप को इन्फेक्ट करता है। क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि फैसियोला हेपेटिका में कौन सा लार्वा किसको इन्फेक्ट करता है। ओके